This room in which you are present today is free of all the biases, all inhibitions, all judgment. So just open your mind, open your heart, and just listen to it and connect with it. And then जो भी मन में आ रहा है उससे आप लिखते जाओ, नोट करते जाओ. आपकी जो भी क्वेश्चंस है एंड जो भी आपको कमेंट करना है, you can keep on posting it on chat box. End में we are going to address all those questions today. Just be free, be open, and just enjoy this session. फॉर मी पर्सनली मैंने हमेशा से ऐसा सोचती रहती हूँ कि आई शुड गेट मोर कनेक्टेड टू टीनेजर्स. आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू ऑल and so I'm very happy today that I've got this opportunity to introduce and conduct this host this program, which is started by my mentor institute, Deep Institute. We run the Carnival of Hope every year. This is the 4th season of Carnival of Hope. And we run various programs, parenting पे, teachers के लिए, students, kids के लिए, students के लिए who are seeking career counseling, and health and mind, mental health, physical health, and all that. And this year, especially, we have started with this session for teenagers. The name is Enlighten, and it is just a focus. Our focus is on you all, and so make the most out of it. It also gives me, I'm so grateful and so much happy today that I'm introducing the speaker of the day. She is my mentor and she inspires me every day. Dr. Sween Saini ma'am. She is a phenomenal counseling expert and a coach who will coach your soch, right? She is not just a therapist. She is a beacon of strength and compassion and wisdom. Her ability to create a safe space for anyone who comes to talk to her. आप कोई भी हो, आप जाके उनसे एक बार बात कर लो, आपकी सब सवाल सुलझ जाएंगे, सब बातें आपको समझ में आ जाएगी. She is that good. You will not be able to hold back any of your weaknesses in front of her, and you can open your heart to her. She is that good. I can guarantee. She reminds me that, women can be powerful forces for healing and bringing positive change in everyone. Her dedication to her clients in the field of mental health is truly awe-inspiring, unmatched. उनके जैसा कोई नहीं. तो I'll not spend much more time. मेरे से बात मत करो, Sween ma'am से बात करो. Welcome, Sween ma'am. Over to you. तूफानों से घिरे जो कश्तियाँ, दरिया के पार लगाऊं, नाव पर लगी हो जिंदगी, मैं फिर भी मुस्कुराऊं. अब किस्मत अपने हाथ है, मन में उठे जज्बात है. किस्मत अपने हाथ है, मन में उठे जज्बात है. आशाओं के पर खुले हैं प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूं और छू लूं आसमां. धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है. सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है. आशाओं के पर खुले हैं प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूं और छू लूं आसमां. धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां. Hello. Hello, everyone. Good evening. Very warm welcome from me, myself, and my deep community. Thank you so much
for giving your precious evening time to be with us for this meaningful, purposeful, and life-changing webinar. Thank you so much, my dear Megha, for warm introduction, kind words, so much of encouragement. I'm so humbled. I'm so glad. Thank you so much. Today, we are going to speak on this topic, my life, my choices. Oh my God. टीनेजर्स की जिंदगी का, टीनेजर्स की दिनचर्या का, डेली रूटीन का इतना फेवरेट डायलॉग है, माई लाइफ माई चॉइसेस. आपको क्या? वेरी ट्रू. आई ऑलवेज अप्रिशिएट, वैलिडेट एंड एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज देयर ओन राइट टू हैव देयर चॉइसेस, टू लीड देयर लाइफ एंड टू बी अवेयर ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस टू. तो एनलाइटिंग में आज आपका स्वागत है. अपनी जो सीट की पेटियां बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक बड़ी जबरदस्त उड़ान के लिए, क्योंकि ये भी हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम आपको करियर की दिशा में सही जर्नी और सही गोल्स डिसाइड करने के लिए मोटिवेट करते हैं. आज हम इस पूरे डिस्कशन में कोई भी लेक्चर नहीं देंगे, कोई भी ज्ञान नहीं देंगे. हम सिर्फ अपने सामने एक आईना रखेंगे और देखेंगे कि क्या मेरी जिंदगी मुझे वो दे रही है जो मुझे चाहिए. क्या मेरी जिंदगी से मैंने वो लिया है जो मुझे खुशी दे रहा है, या मेरी जिंदगी मुझे कहीं निराशा, परेशानी, सैडनेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ रिटार्डेशन, बैड रिजल्ट्स, बैड हेल्थ, उसकी तरफ तो नहीं ले जा रही. और रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम करेंगे आपकी जिंदगी की बात आपके साथ. तो हैं तैयार? इफ यू आर रेडी, टाइप इन द चैट बॉक्स REE. आरी जल्दी जल्दी. आप आरी लिखेंगे तो मैं आरी. जल्दी जल्दी. आर यू रेडी फॉर दिस अमेजिंग जर्नी एंड ट्रांसफॉर्मेशन? टाइप RE इन द चैट बॉक्स. मैंने जैसे पहले बोला है, बच्चा लोग, पेरेंट्स, anybody who is present here, educators, coaches, teachers, आपको यहाँ बैठ के कोई भी लेक्चर नहीं सुनना है. आपको इक्वली पार्टिसिपेट करना है. अपनी उंगलियों को हमेशा मुस्तैद रखिए कि आप चैट बॉक्स में टाइप करते रहें. हम डिस्कशन के एंड पे आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आप चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा. हम यहाँ हैं आज आपको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, ना कि कुछ सिखाने और समझाने के लिए. आपको क्या करना चाहिए ये हमारा मोटिव नहीं है. ठीक है? तो हम बात करेंगे माई लाइफ माई चॉइसेस. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन इज, व्हाट इज लाइफ एज पर योर ओन एक्सपीरियंस? आपके हिसाब से लाइफ क्या है? गिव मी वन वर्ड. Happiness, joy, excitement, challenge, success, name, fame, money, relationship, love, whatever you feel, you can define life in your own words. What is life for you? Ayan says everything. Preeti says love. Divya says peace. Lavina says love. Nishi says journey. Oh my God. Oh my God. Burden for Kavya. Sakina. Satisfaction, challenge, happiness, adjustment, only chance. Wow. Wonderful. Wonderful. Opportunity. See how many people are sitting here. They have completely different word with them. Okay. So let me ask another question. When this life starts? हमारी जिंदगी कब शुरू होती है? Yes, please. Wonderful answers. Thank you so much for participating. Birth. Wonderful. Wonderful. Yes. जब हम पैदा होते हैं, ओ भाई सोमा जी, वंडरफुल. यस, वेन एवर वी वॉन्ट टू. क्योंकि क्या कहते हैं ना कि सिर्फ सांसें लेने का नाम ही जिंदा रहना नहीं है. ब्यूटीफुल. मदर की वॉम से. क्या बात. काव्या को चाहिए फ्रीडम. काव्या को चाहिए टू हर ओन चॉइसेस. यस. सो when we born, this life starts, or in mother's womb we can say, because we born the same day when our mother conceives us. And when we are going to turn off this life button, कब टर्न ऑफ हो जाता है इस लाइफ का बटन?
definitely exactly opposite to first question answer, that is death. So जैसा कि हमने एक्सपीरियंस किया कि सबके क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग थे, व्हाट इज लाइफ, तो आई कैन से कि लाइफ इज ए जर्नी फ्रॉम बी टू डी. लाइफ एक सफर है, बर्थ से शुरू होता है, डेथ पे खत्म होता है. कैन यू ऑब्जर्व 3 highlighted bold letters A, B and D? What is missing here? My dear Youngistan, what is missing here? Which letter is missing here? C. Yes. Okay. So if I say life is a journey from B to D, depending on this C, what you would like to put in C? Life is a journey from birth to death, depending upon C. So what would you like to put in C according to you? Content, compassion, goals, aims. Very good. Great. Choices, commitments. Wonderful, wonderful. So choices वालों के लिए जबरदस्त तालियां. Because हमारी जर्नी ये अलग अलग हो सकती है, डेफिनेटली बिल्कुल अलग अलग होती है. सबके घरों के हालात अलग हैं, सभी का खुद का टेम्परामेंट, पर्सनालिटी, कैरेक्टर अलग है, सबको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज अलग हैं, सबकी लाइफ का गुड लक बैड लक अलग अलग है, अगर आप उसे मानते हैं तो. So this journey is completely different, but instead of all these differences, one thing is common. This journey depends upon your choices. Trust me, you can't get off your choices whenever you are trying to lead this life at your own terms. मेरे प्रोफेशनल करियर में 33 इयर्स हो गए मुझे एज ए एजुकेटर और कोच, एज ए काउंसलर काम करते हुए, एंड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के तौर पे आई हैव स्पेंट मोर देन 15 इयर्स. इसमें मुझे जब जब यंगस्टर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, विच इज 90% ऑफ माय करियर पाथ, उसमें सबका एक ही दुखड़ा है, हमें वो नहीं करने दिया जाता हम जो चाहते हैं. सो लेट मी आस्क यू दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट आर चॉइसेस? आपके हिसाब से चॉइसेस क्या हैं? सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम काव्या फर्स्ट. What kind of choices she wants to opt at her own or other people in the room? Yes, please. Decisions. Very good. Dev is saying decisions. Health. What kind of choices you want to opt? Freedom. Very good. किस तरह की choices आपको चाहिए to lead your happy life? आपकी मन मर्जी की life, freedom वाली life. Come on, guys, girls. Positive. Okay. Great. Yes, think positive. Choices. Okay. So choices, they are actually very important. But मजे की बात क्या है कि जैसे जैसे हम ये B2D की जर्नी में आगे जा रहे होते हैं, आप यकीन करिए और आप एग्री करेंगे कि ये चॉइसेस हमारी हर स्टेज पे, लाइफ की हर स्टेज पे चेंज होती रहती हैं, हमारी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस के हिसाब से. बिल्कुल एक न्यूली बॉर्न बच्चे को जब सिर्फ स्लीपिंग, नैपिंग, सुसु पॉटी, फीडिंग यही चाहिए होता है, और उसके बाद थोड़ा सा प्लेफुल होना, थोड़े टॉयज, दे लीड टू बुक्स, choices of subjects, choices of friends in the classroom, then career, then freedom life of college, then relationship, then family, then adulthood. और ये सारी stages में हम सब की choices एक जैसी नहीं रहती हैं. As we grow, as our choices lead to change. So I say life is all about choices. हमने किस उम्र के किस दौर में क्या किया, क्या चुना, हमारा चुनाव ही ये तय करता है कि हमारी जिंदगी का ये सफर कहाँ जाके लैंड करेगा. जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, क्या हम एक हैप्पी, हेल्दी, कंटेंटेड, आनंदमयी जिंदगी जी के जा रहे हैं, और वी आर टोटली शैटर्ड, फेटल, फेलियर एंड फुल ऑफ एगनी, फुल ऑफ डिस्पेयर, फुल ऑफ रिग्रेट्स, फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस. ये कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे लाइफ की चॉइसेस में.
So if anybody of you wants to share any bad choice and their consequences, any good choice and any good consequences, please write down in the chat box freely. As initially Megha has already told you, this room is free from any kind of judgment, labeling or biasness. This is completely confidential and very, very non-judgmental space where we want you to let out all your emotions out through this chat box. Make this chat box dustbin today and vent out everything, whatever is bothering you. So if you want to share any kind of experience, please feel free. And you will also agree with me, in all ages, in all categories, in all areas of life, it matters what are our choices and how they affect our lives. अगर एक बच्चे ने खेलते खेलते बिना किसी सपोर्ट के क्रॉल करते करते सीढ़ियों पे चढ़ना, बिना सिक्योरिटी, बिना किसी सुपरविजन के सीढ़ियों पे चढ़ना चूज किया, तो डेफिनेटली falling off the stair, getting hurt has many high probabilities. अगर किसी स्कूल गोइंग बच्चे ने मम्मा या पापा से झूठ बोल के पीरियड बंक किया और उसने वो टाइम कैंटीन में या कहीं सो के बिताया, तो थोड़े दिन में घर शिकायत पहुंचेगी। ऐसे ही अगर हम किसी भी एक चॉइस के ऊपर किसी दूसरी चॉइस को प्रायोरिटी देते हैं, इमीडिएटली हमारे कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो जाते हैं। So each person has different ideas about what is important and what makes them feel best. इसीलिए सबको अपनी अपनी choices से बड़ा प्यार होता है। Nobody can tell anybody कि ये choice ठीक है या गलत है, because it completely depends upon their perception, their thoughtfulness, their mental glasses कि वो उसे किस तरीके से देख रहे हैं। But let me tell you, my darling Youngistan and even adults, because I never say कि चॉइसेस ऑप्ट करने में सिर्फ यंगस्टर्स ही ब्लंडर करते हैं, हम एडल्ट्स भी बहुत बार ब्लंडर कर जाते हैं। सो नेवर फॉरगेट, चॉइसेस लीड्स टू डिसीजन, डिसीजंस लीड टू एक्शंस एंड एक्शन लीड्स टू रिजल्ट्स। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑलवेज लुक अपॉन रिजल्ट्स एंड देन से ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, मैम ने मेरे को मार्क्स नहीं दिए, उसने मुझे एग्जाम में डिस्टर्ब किया था, मम्मी आपके रिश्तेदार आ गए थे एग्जाम डेज में, मैं पढ़ नहीं पाया, या फिर मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ इसने किया। We forget about what choices we opted, what decision we made, what action we had, and then now when we look at the consequences, if they are bad, we are completely sad, and then we try to defend ourselves, then we try to escape from the reality. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, वी ऑल नो, अगर हम 5-6 साल के भी हैं तब भी हमें ये पता होता है कि फॉर ए गुड हेल्थ, फॉर ए गुड बॉडी, फॉर ए गुड मेडिकल कंडीशन, फॉर ए गुड ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, व्हाट इज द राइट चॉइस, एप्पल ए डे और डोनट एवरी डे, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारा मन किधर जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन पे जाता है कि राइट साइड ऑफ स्क्रीन पे जाता है? यस प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट अट्रैक्ट्स मोर, विच इज द वेरी lucrative डोनट, यस राइट साइड, यू आर वेरी राइट। इसको तो देखते ही कलरफुल इतना है, प्यारा इतना है, क्यूट इतना है, टेस्टी इतना है, और जब भी हम इसको देखते ही भर हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है। एप्पल को देख के कभी किसी के मुंह में पानी आया? कभी नहीं आया। उसको खाने में कभी मजा आया? कभी नहीं आया। So that's how all the time हम लोग, most of the time, if I say 90% केसेस में, जब तक हम बीमार ना हो, हम मजबूर ना हो, हमारी स्ट्रिक्ट मम्मी ना हो, है ना, तब तक, या फिर हम हॉस्टल में रह रहे हैं और हमें मेस में एप्पल ही मिलता है भैया, डोनट नहीं मिलता, ठीक है, तो देन ओनली वी जस्ट गो फॉर एप्पल ए डे। लेकिन हमें ये पता है कि चॉइस का कॉन्सिक्वेंस क्या है, फिर भी हमारी चॉइस हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रिकमेंडेड नहीं होती।
हमारी अवेयरनेस के बाद भी हम वो चॉइस नहीं ले पाते जो हम लेना चाहते हैं। Am I right? Yes. बट जब हम छोटे थे ना, when we are born, we are not like that, you know. हमारा सबकॉन्शियस, it was fearless, confident, so much stable and enough. ठीक है, कंप्लीट एंड एनफ जिसको आप बोलते हो कि उसके ऊपर कभी भी कोई, जितनी भी हमारे अंदर का ग्रीड होती है, टेस्ट होता है, उसकी कोई लालच नहीं होता। बट जैसे जैसे हम थोड़ा बड़े होते हैं, स्पेशली दिस 7 to 14 ईयर्स की जो एज होती है, ये बड़ी शरारती एज होती है। इसमें हमारी बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम तैयार हो रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन हमारे स्कूल कैसा है, फ्रेंड्स कैसे हैं, पेरेंट्स का ब्रिंगिंग कैसा है, फैमिली स्क्रिप्ट कैसी है, पेरेंटल वैल्यू कैसी है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे को जिस तरह की कंडीशनिंग और नर्चरिंग दी गई। और ये पूरे फेज में हमारा फुली डेवलपमेंट हो रहा होता है ऑन दी डिफरेंट एरियाज, चाहे वो सोशल है, साइकोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, फिजिकल बॉडी ग्रो कर रही है, और हमारा क्रिएटिव स्किल्स भी ग्रो कर रहे होते हैं। इस वजह से ये बहुत ही ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं इसको, और इस ट्रांजिशनल फेज में हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। एंड दिस इज द फाउंडेशन एज। इस एज में जिस तरह की टेंडेंसीज और हॉबीज और हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, दे लास्ट फॉरएवर। इन्हीं वैल्यूज, इन्हीं बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे हमारा थॉट प्रोसेस बनता है, इन्हीं थॉट्स के बेसिस पे हम फील करते हैं, इमोशन आते हैं। एज वी थिंक, एज वी फील, एज वी बिहेव। सो हमारा बिहेवियर जो है, इट मीन्स दैट इज एक्शन। वो एक्शन लेने के लिए हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। हमारी फैमिली का वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है। मम्मा ने हमें बताया है हाउ टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली। हमें अब तक सिखाया गया है व्हाट इज द हेल्दी डाइट, व्हाट इज द बैड डाइट। हमें ये बताया गया है कि व्हाट आर द गुड फ्रेंड्स, व्हाट आर द बैड फ्रेंड्स। हमें ये भी पता है व्हाट इज द गुड टच, व्हाट इज द बैड टच। हमें ये भी पता है स्क्रीन पे कितना टाइम लगाना चाहिए, कितना नहीं, किस चीज से आईसाइट वीक होती है, किस चीज से क्या प्रॉब्लम आती है। तो हम डिसीजन लेते हैं, हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा टाइम स्क्रीन पे रहेंगे, हम अच्छे बच्चे बनेंगे, हम एक अच्छा करियर ऑप्ट करेंगे, गुड मार्क्स के साथ साथ अपने स्किल्स पे काम करेंगे, गुड फ्रेंड्स चूज करेंगे। और जैसे ही हमारे ये डिसीजंस एक्शंस में बदलने लग रहे होते हैं, और हम अपने पास्ट को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को व्यू में रखते हुए फोकस करते हैं अपने प्रेजेंट पे, उसी बीच कहीं से पता नहीं डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है। ये डिस्ट्रैक्शंस मम्मा ने प्लेट में रख के सर्व नहीं की, ये डिस्ट्रैक्शंस हमें टीचर ने क्लास में रिटर्न गिफ्ट पे नहीं दी, ये मेरे किसी फ्रेंड ने भी मुझे नहीं दी, शायद दी, आई डोंट नो, लेट्स चेक। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आ जाती हैं हमारे डिसीजंस और एक्शंस के बीच में। दे जस्ट ब्लर आवर विजन। वो हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो एम होता है, उससे हमारा ध्यान हटा के कहीं और ले जाती हैं। और फिर हमारे जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे, डिपेंडिंग अपॉन आवर रूट्स, वैल्यूज, थॉट्स, इमोशन एंड डिसीजन, वो रिजल्ट वैसे नहीं रहते जो हमने अब तक सोच रखे थे। अब ये डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या होती हैं? Yes, please. Write in the chat box, because I know everybody sitting in this room is very intelligent and smart. I'm not supposed to tell everything and anything. They know much of the information better than me. Blue screen, very good. Phone, valuing others' opinion, very good. Screen, peer pressure, क्या बात, बाद में कर लूंगी। Chatting, social media, क्या बात है। Yes, pressure, peer pressure, mobile phone, friends, yes, procrastination, reels, क्या बात है, gaming, comparison, wonderful, screen time, temptation, wrong commitments, very good, too many options, क्या बात है, बहुत अच्छे। So yes, बहुत सारी distractions, रील्स हों, शॉर्ट्स हों, किसी की इंस्टा सर्फ कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, whatever it may be। आपको एक वर्ड पता है, अट्रैक्शन? What do you understand by attractions?
Yes, please. How you can define attraction? Something which attracts, जो हमें आकर्षित करे। तय है हमेशा, कभी भी स्नेक को देख के हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना? कभी भी एक क्रोकोडाइल को देख के नहीं कहेंगे आ गले लग जा, कहते हैं हम? नेवर। तो ये चीजें ऐसी हैं जो बड़ा ल्योर करती हैं। कोई सुंदर सी लड़की, कोई स्मार्ट हैंडसम लड़का, किसी की बहुत ही प्यारी बनाई हुई रील, कोई नेटफ्लिक्स शो, कोई अच्छी सी ल्योर करने वाला टेस्टी फूड, है ना? मोमोज कितना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं हमें। किसी की ड्रेस, किसी का स्टाइल ऑफ टॉकिंग, किसी की पर्सनालिटी, किसी का बोलने का तरीका। तो attractions are not bad, because attractions, they are meant to attract, because they are so attractive, they are so beautiful, they are so soothing, calming. That's why they attract us. These are not distractions actually. अब ये वो हैबिट्स या अट्रैक्शंस हैं, या वो एक्टिविटीज हैं, या ये वो लोग हैं, ये वो हमारी वो आते हैं जो हमारी जिंदगी का एक मेजर हिस्सा है। आपको इसमें से फिल्टर करना है कौन सी अट्रैक्शंस आपको आपके गोल्स की तरफ, डिसीजंस और एक्शंस की तरफ ले जा रही हैं, उनकी तरफ आपको पुश कर रही हैं, आपको अपना गोल अचीव करने में सपोर्ट कर रही हैं, आपको अपना गोल और अपनी जो लाइफ का पर्पस है, एक अच्छा इंसान बनना, हेल्दी, हैप्पी, सक्सेसफुल, जिसके पास नाम, पैसा, शौहरत एंड पीस ऑफ माइंड सब कुछ हो, ये सब उसको दिलाने के लिए हेल्प कर रही हैं। या फिर ये जो अट्रैक्शंस हैं, ये आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करके पीछे खींच रही हैं। नो 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 नो, उधर नहीं जाना, मुश्किल रास्ता है, लेट्स प्ले द गेम, ओके, लेट्स टॉक टू फ्रेंड्स, चोरी चोरी स्नैपचैट, किसको पता ना चले, ओके, सो लेट्स हैव सम मोर मोमोज रादर देन ईटिंग दाल सब्जी रोटी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपकी जो अट्रैक्शंस हैं, आपको जो चीजें फ्रीडम सीख करने के लिए मोटिवेट कर रही हैं, पुश कर रही हैं, रिबेल कर रही हैं, अगर तो वो आपके गोल की तरफ, आपका जो भी लाइफ का ड्रीम है, जो आप दुनिया को करके दिखाना चाहते हो, उसमें हेल्प कर रही हैं, गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज दे आर ट्रैक्शंस। वो फोर्स है जो आपके लिए सपोर्टिव है, हेल्पफुल है, पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, हेल्दी है। बट ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा पूरी ईमानदारी के साथ कि क्या वो हॉबीज, एक्टिविटीज, फ्रेंड्स, पीपल अराउंड यू, आपकी आदतें, आपके जो रोज का रूटीन है, आपकी जिंदगी का जो भी मेजर हिस्सा है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इफ दे आर पुलिंग यू अवे फ्रॉम योर फ्यूचर ड्रीम्स, योर फ्यूचर लाइफ, माय डियर पीपल, स्टे अवे फ्रॉम दैट। आज ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा। वो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो नेगेटिव हैं, अनहेल्दी हैं, they are damaging, they are going to kill your dreams, they are going to shatter you in the long term. पेरेंट्स कहीं ना कहीं, टीचर्स को पता चले ना चले, आपकी जिंदगी के रिजल्ट्स आप ही के सामने आने वाले हैं। तो आप भटकना चाहते हैं, बहकना चाहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस को गले लगा लीजिए। लेकिन अगर आप अपने गोल की तरफ पूरी तल्लीनता के साथ, पैशन के साथ जुटना चाहते हैं और जिंदगी में शाइन आउट करना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं, तो फिर जो आपकी ट्रैक्शंस हैं, राइट चॉइसेस हैं, उनकी तरफ आपको आज ही ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रही आप क्या करो, मैं आप ही के ऊपर छोड़ रही हूं आपको क्या करना है। आज आप किस चीज पे अटेंशन दे रहे हो, कल को वो आपका रिग्रेट, गिल्ट, शेम, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन बनेगा, आपकी हेल्पलेसनेस बनेगा, वर्थलेसनेस बनेगा, यूजलेसनेस बनेगा, फिर सुसाइडल आइडिएशंस आएंगी, देन यू विल ट्राई टू किल योरसेल्फ और रन अवे फ्रॉम द सिनेरियोस। या फिर फ्यूचर में आप फियर, एंजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस, पैरानॉइड होना चाहते हो। कंप्लीटली आपको आज प्रेजेंट में वही चॉइसेस लेनी है। आपको पेन लेनी है या नहीं लेनी है, पे अटेंशन इन नाउ, ओके। सो आज की पेन ये भी हो सकती है कि पढ़ना पड़ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड स्क्रीन टाइम है, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंड टॉक है, मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, पापा बहुत चीजों पे टोकते हैं, अभी ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा।
मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है। आज आपकी ये पेन हो सकती है, लेकिन कल यही प्लेजर और प्राइड होगा। लेकिन आज अगर वो छोटे छोटे प्लेजर लेने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग टर्म पेन आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। मेरे रोज के डे टू डे बेसिस में जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं बच्चों की परेशानियां लेके, बिकॉज ऑफ ऑल दोज ब्लंडर्स दे हैव मेड विद देयर चॉइसेस, not taking right choices at the right time. Another interesting question. Why do we have brakes and seat belts in car? मुझे पता है सभी को कारों का बहुत शौक है. We all are fascinated by speed cars, sports cars, different cars, toy cars, बड़ी कार, छोटी कार. तो बताइए उसमें सीट बेल्ट्स और ब्रेक्स क्यों होती हैं? Yes, Ian, I completely understand hard to leave distractions. आज हम आपको उसके तरीके बताएंगे. Yes, safety to have control. Harminder, I love you for that. Because safety is zyada to have control. Yes, to protect from danger. Wonderful, Nilofer. Safety, yes. कई लोगों को ये मिथ है, उनकी कई बार ये एक मिस अज्यूम करते हैं वो कि ब्रेक्स जो हैं वो हमें स्पीड रोकने में काम करते हैं, वो हमें तेज स्पीड रोकने के लिए मजबूर करते हैं. सॉरी, ब्रेक्स हैं तभी आप फास्ट व्हीकल ड्राइव कर सकते हो, है ना? यस, वंडरफुल अर्पिता. फॉर सेव आवर अदर लाइफ एंड टू हेल्प अस स्टॉप व्हेन यू वांट टू. मेगा हैज मेड इट वेरी क्लियर कि ब्रेक्स हैं तो आप जितना मर्जी फास्ट चलो, आपके पास ये प्रोविजन है कि जब भी रुकना चाहोगे आप रुक सकते हो, स्पीड स्लो कर सकते हो. सीट बेल्ट आपको फास्ट ड्राइविंग में सेफ करती है कि आपको चोट नहीं लगती. वो तंग तो करती है, घुटन तो देती है, सफोकेशन है, लिमिटेशन है, कंपल्शन है, मजबूरी है, लेकिन बाय चांस खुदा ना खास्ता कभी कुछ था हुआ, टकराए कहीं तो आप सेफ हैं, आपको उतनी चोट नहीं लगती जो बिना सीट बेल्ट के लगती है. सो यही रोल होता है हमारी लाइफ में पेरेंट्स का, टीचर्स का, एजुकेटर्स का, कोचेस का, ट्रेनर्स का, गाइड्स का, मेंटोर्स का, जो हमें गाहे बगाहे टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, टोकते रहते हैं, पोकते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं पोकिंग करना, पुटिंग फिंगर ऑन मी, माय चॉइसेस, व्हाई यू आर पुटिंग फिंगर ऑन माय चॉइसेस. खासकर जब इतना सारा लॉट वो सब उसी तरफ जा रहा है जहां मैं जाने वाला हूं या वाली हूं या मैं जाना चाहती हूं. व्हाई यू आर स्टॉपिंग मी ओनली? बिकॉज दिस इज योर लाइफ. And your parents, your teachers, your well-wishers, they are more concerned about you rather than about that crowd which is following any wrong path or opting any wrong choice. Okay, so my life, my choices mein, it is completely your choice. Either you are going to be part of that crowd which is misled, which is going to attracted by distractions, or you are that one who is opting and following and adapting the attractions and showing different results, shining out from the crowd differently. अब वो shining out आपका एक अलग हो सकता है कि मुझे सिर्फ सोशल मीडिया पे छाना है, मुझे सिर्फ इंस्टा फ्रेंड्स में ही पॉपुलर होना है और इंस्टा फ्रेंड से ही कनेक्शन बनाना है, मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता. लेकिन आपको अंदर से ये पता है कि ये जो फेक वर्ड है ये कितना खाली है. जब आपकी फीस डिपॉजिट करने का टाइम आता है, जब आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस आ जाता है, जब आपको किसी ने हर्ट किया, किसी ने आपको हार्म किया, तब आपको वो फेक वर्ड बचाने या सपोर्ट करने, एम्पावर करने नहीं आता है. तब वो आपके वेल विशर्स, आपके पेरेंट्स, आपकी फर्स्ट फैमिली होती है जो आपको उन चीजों से बचाती है. यस, सो इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी एडिक्शंस की. सो क्या होती हैं एडिक्शंस? हाउ डू यू डिफाइन एडिक्शन? व्हाट इज एडिक्शन? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. एनीबडी कैन डिफाइन एडिक्शन? हद से ज्यादा
My God, yes. Yes. Anybody is Ankita is regularly asking about peace. My dear, today is different topic and we can't distract from our topic. So if you want to talk about peace, you need to talk to me individually, personally. Okay? Yes, please. Definitely through this discussion till the end we are traveling down to peace only. लेकिन अगर वो कुछ अलग तरीके से आप पूछना चाह रहे हो, then you need to talk to me individually. Thank you, Ankita. So जब भी हमें किसी भी चीज पे कंट्रोल नहीं हो, अर्जीज हमारी बहुत स्ट्रांग हो, जब हमें ये समझ ही ना आए कि हमारा बिहेवियर हमें क्रॉनिकली डिसफंक्शन कर रहा है, हमारे ब्रेन सिस्टम को हैम्पर कर रहा है, too much of anything which involves around reward, motivation and memory. Your body or your mind, it is craving for a substance or behavior or activity, a compulsive, obsessive pursuit of any reward. आपको उसमें प्लेजर फीलिंग आती है, चाहे वो कितनी ही बुरी चीज हो, तो आपका माइंड उसको क्रेव करता है, आपकी बॉडी उसे क्रेव करती है और उसके लिए रेपिटेटिवली आप एक हैबिट लूप में जाते हो. और इसमें सबसे बड़ी एडिक्शन की एक नेगेटिव जो बात है कि लैक ऑफ कंसर्न ओवर कॉन्सिक्वेंसेस. आप चॉइसेस की तरफ तो अट्रैक्ट होते हो, लगातार उनके ट्रैप में फंसते भी जाते हो, लेकिन मजे की बात यह है कि उस वक्त हमारे ब्रेन को, माइंड को कॉन्सिक्वेंसेस भी समझ आ रहे होते हैं, लेकिन लैक ऑफ कंसर्न होता है. हम कंसर्न ही नहीं होते कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में. इसीलिए एक जो एडिक्टेड है वो दूर नहीं रह पाते फ्रॉम द एडिक्टेड बिहेवियर. They display a lack of control. They have an increased desire for substance or behavior, and they dismiss, completely invalidate, completely negate how their behavior may be causing problem to them or others around. और कभी-कभी तो एक इमोशनल नंबनेस भी हो जाती है towards family, towards scenarios, towards self जो esteem, towards self well-being. So this is the actual face of addictions. अब ये इतनी बुरी हैं तो होती क्यों हैं? Why they are around us so much? Why? कोई बताएगा? Yes. एडिक्टिव सब्सटेंसेस हों, एडिक्टिव लोग हों, बिहेवियर्स हों, ये हमारे ब्रेन को हाई करते हैं. जब कहते हैं ना, हाउ इज द एनर्जी इन द रूम, लेट्स चेक हाउ इज द एनर्जी इन द रूम. हेलो, हाय मैम. यस, हाय. अब ये वाला हाय अच्छा लग रहा है या वो वाला हाई अच्छा लगता है? वैसे तो दोनों ही अच्छे लगते होंगे, जो करते हैं उनको तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये हाईनेस वाली जो फीलिंग है ये कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? यही हमारी माइंड थॉटफुलनेस, माइंडफुलनेस पे डिपेंड करता है. फिजिकल और फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, ये दोनों हाई हमें कहाँ से मिलेंगे, किन चीजों पे हम डिपेंड करते हैं, किस तरह के सब्सटेंस, किस तरह की हॉबीज, एक्टिविटीज, बिहेवियर्स में एंगेज होते हैं हम टू फॉर ए लॉन्गर टाइम टू अचीव दैट सेम हाई अगेन एंड अगेन. ओके, सो आवर ब्रेन इज कंडीशन टू दैट हाई फ्रॉम आउटसाइड एक्टिविटी. तो ये अंदर से अपना हाई पॉजिटिव हार्मोन, प्लेजरेबल हार्मोन बनाना ही बंद कर देता है कि बाहर से सप्लाई हो रही है ना किसी और एक्टिविटी से, तो हमारा ब्रेन कहता है करो, चिल करो, टालो, फिर देखेंगे. तो वो निकम्मा हो जाता है और फिर ब्रेन और बॉडी बार बार उसी दोबारा सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, हॉबीज, एक्टिविटीज, एडिक्शंस की डिमांड करता है एंड इट क्रिएट्स ए हैबिट लूप. और आप सब जानते हैं, स्पेशली हम आज टीनेजर्स को एड्रेस कर रहे हैं थ्रू एनलाइटनमेंट प्रोग्राम. हमें पता है कि ये जो एज है, दिस इज इमर्जिंग एडल्टहुड एज, जिसमें एक एक्साइटिंग फेज ऑफ लाइफ रहता है, जिसमें
हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती है, एलिवेशन रहता है मूड का और स्पिरिट का, क्यूरियोसिटी का, रिस्की बिहेवियर का। हम ट्रांजिट कर रहे होते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, वो उसके बीच के सफर में पूरा एक इम्पॉर्टेंट और एक्साइटिंग फेज होता है, बिल्कुल वैसा जैसे नया नया प्यार होता है। आप नई ड्रेस लाते हो, कितने दिन उसको निहारते रहते हो, कोई नया फ्रेंड बनता है, उसके लिए कितनी आपको एडिक्शन हो जाती है, कोई नया आपको टॉय मिलता है, नया फोन मिलता है, दिल करता ही नहीं छोड़ने को। सिमिलरली जब भी कोई एक हैबिट डेवलप हो रही होती है, वो हमें इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि धीरे धीरे हम उसके ट्रैप में इन्वॉल्व, एंगेज, एंटेंगल होते चले जाते हैं। और जो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है वो हमें दिखाई ही नहीं देता, बिकॉज हमारा पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरा जो एक एनर्जी है वो किस पे लग रहा है, दैट प्लेजर or any motivation or any high feeling which we are getting through that habit, activity or distraction. Let me tell you one more thing about your brain, dear youngistan. टीन ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये अननेसेसरली न्यूरॉन्स और साइनेप्सिस बना रहा होता है ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ योर लाइफ। और नेसेसरी ग्रोथ के साथ साथ कुछ कुछ रिस्की बिहेवियर भी आ रहे होते हैं। ये सिर्फ आज की जनरेशन के साथ नहीं है, हमारे ग्रैंड जनरेशन के साथ भी होता था। लेकिन तब एक्सपोजर कम था, लिमिटेशन ज्यादा थी, रिसोर्सेज कम थे, इनहिबिशन ज्यादा थी, तब नॉलेज कम थी, इनोसेंस ज्यादा थी, तब क्योंकि अवेयरनेस कम थी, जिसको हम बोलते हैं कि एक रूटीन लाइफ में जीने की वो एक थी टेंडेंसीज, तो उसमें रिस्की बिहेवियर्स के चांसेस कम होते थे। जॉइंट लार्ज फैमिलीज में बहुत सारे मॉनिटर होते थे, एक नहीं बड़े सारे डीन, मॉनिटर और जो जेलर, हिटलर, बड़े सारे होते थे उस फैमिली में, तो मौका ही नहीं मिलता था कुछ गड़बड़ करने का। अब तो छोटे से बच्चे के पास अपनी दुनिया है स्क्रीन पे, छोटे से बच्चे को सब कुछ मिलता है, उसके कहने से पहले ही पेरेंट्स देते हैं चॉइसेस, एक्सपोजर, अवेयरनेस, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, किसी भी चीज की कमी नहीं। तो रिस्की बिहेवियर्स बढ़ गए हैं और हमारे डेवलपिंग ब्रेन को बड़े अच्छे से पता है कि यंग पीपल आर वल्नरेबल टू डेवलपिंग एडिक्शंस, क्योंकि उनका कॉग्निटिव कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं है। उनकी इमोशनल डेवलपमेंट तो फुल हाई है, लेकिन इंटेलिजेंस और थिंकिंग कैपेसिटी अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो देयर ड्राइव फॉर प्लेजर ओवर पेन, इट इज मोर हाई। ओके, सो ये जो कॉग्निटिव कंट्रोल है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे को रेजिस्ट करने में कि हम डिसिप्लिनरी, हार्डवर्क या कोई अच्छी एक्टिविटी करने की बजाय कोई शॉर्ट टर्म गेन वाली, प्लेजरेबल, एंटरटेनिंग एक्टिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए तो हम स्कूल बंक करके गर्लफ्रेंड को मिलना जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। कोई भी एक बच्चा स्टडी रूम करने की बजाय फोन मुझे चाहिए यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मुझे क्लास में समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसकी प्रेफरेंस क्या होती जाती है धीरे धीरे, कि सिलेबस ओरिएंटेड सर्च से धीरे धीरे वो गेम्स में या फिर किसी और नोटोरियस कंटेंट पे पहुंच जाता है फॉर दैट शॉर्ट टर्म प्लेजर ऑफ द ब्रेन। गॉट इट? Everybody is getting who is playing the game inside you? Who is the inner enemy? Yes, please. आपको पता चला आपके अंदर कौन दुश्मन बैठा है? That is your negative subconscious mind inside your brain, who is only craving for pleasure, taste and high feeling, थोड़ी देर का elevation. Or if we talk about types of addictions, what are the types of addictions? Can anybody tell? Please type in the chat box about the types of addictions. Type in the chat box. Quickly. Medicine, digital, very good. Yes, screen, alcohol, very good. Infatuation, क्या बात है दे, very good. Drugs, mobile,
हैबिट एडिक्शन, वंडरफुल, कंटेंट, वंडरफुल, वाओ, शेयर मार्केट, क्या बात है, फूड, यस, आज हम आप पर्सन, क्या बात है देव, वेरी गुड। सो आज हम आपको हैरान कर देंगे कि it is, yes Shambhavi, very good, behavior addiction. I'm so glad I have so much intelligent participation today in the room. I'm feeling so proud. So when we talk about type of addictions, कई बार हमें वो addictions लगती ही नहीं है। जितनी भी behavioral addictions हमारे आज full boom पे हैं, internet addiction, sex addiction, gambling, shopping, drugs, social media, video games, alcohol, exercise. Oh my God. हमें तो ये बोला गया था exercise is very healthy. How exercise can be addiction? ये तो बात हजम नहीं हुई कुछ। Yes. How exercise is an addictive behavior? As we discussed earlier, excess of everything is bad. Obsession of anything good leads to bad results. तो कोई अच्छी चीज भी होती है तो उसकी जो एडिक्शन है, उसकी जो ऑब्सेशन है, उसका जो अति है जिसको हम बोलते हैं, yes, in excess everything becomes addiction, and rather than giving positive results, it starts giving us bad results. So कितने सारे सब्सटेंसेस हैं, कितनी सारी डाइट है, कितनी सारा फूड है, टेक्नोलॉजी है, इवन वर्क कैन ऑल्सो बी एन एडिक्शन। अदरवाइज अगर आप अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के जो मैनुअल्स आते हैं, साइकोलॉजिकल मैनुअल्स, उसमें देखो तो सेक्स, टेक्नोलॉजी एंड वर्क, दे आर नॉट written or mentioned in the category of addictions. Why? Because they are important part of life. Food is also very important part of life. Exercise is also very important part of life. Making friends is also very important part of life. Even technology is very important part of life in digital age. Then why we are talking about them in bad terms? When they overpower their real purpose, when they lose their inner vision or their goal, कि उन्हें use किस लिए करना है। Overeating leads to bad health. Poor eating also leads to bad health. So there should be a balance in everything. Okay. So pleasure over pain and leisure over discipline, जब ये होने लग जाए तब गड़बड़ हो जाती है। तब समझ में आता है हम साइकोलॉजिस्ट को, पेरेंट्स को, टीचर्स को या खुद आपको, कुछ तो गड़बड़ है दया। तब हमें लगता है ये तो काम से गया। सो एडिक्टिव सब्सटेंसेस जब हमें वो रीइंफोर्स करने लग जाएं, हम उनके बिना रह ना पाए। एंड हियर कम्स द रोल ऑफ माइंड वर्सेस ब्रेन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, when we talk about brain, it is thinking or intelligent brain. When we talk about mind, it is our emotional and feeling brain. जब हमारी फीलिंग, हमारी इमोशन हमारी इंटेलिजेंस को ओवर पावर कर दें, उसे डिफीट कर दें, उसे काम ही ना करने दें, हमारे जो अंदर के न्यूरॉन्स हैं वो हमेशा एक प्लेजर फीलिंग को सीख कर रहे हैं, और विड्रॉल जो है वो हमारे अंदर डोपामिन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन जैसे जो गुड हार्मोन्स है उनको रिड्यूस कर देता है, और ड्रॉप करके एकदम से हमारा मूड ऑफ हो जाता है, एकदम से हम लो हो जाते हैं, एकदम से हम विड्रॉ करने लग जाते हैं, रिजेक्ट करते हैं सबको, कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आइसोलेट होते हैं, और फिर आ जाते हैं हमारे अंदर मेंटल हेल्थ रिटार्डेशन, एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग बैड। दीज आर कॉल्ड एडिक्शंस, जो हमारे अंदर से क्रेविंग उठाती हैं, और फिर बार बार उन क्रेविंग को शांत करने के लिए हम उसी लूप में चले जाते हैं। इसी में ही पैदा होती है लव एडिक्शन। क्योंकि हम यंगिस्तान से बात कर रहे हैं, यंग बच्चों की बात हो, युवा की बात हो, और प्यार की बात ना हो, कैसे हो सकता है? प्यार तो हर जिंदगी के हर मोड़ पे जरूरी है, पर कैसे वाला प्यार? मम्मी पापा का प्यार, दोस्तों का प्यार, सिबलिंग्स का प्यार, टीचर्स का प्यार, फ्रेंड्स का प्यार, इवन गर्लफ्रेंड्स का प्यार, इट्स ओके। बट ये लव, ये एक जेन्युइन इमोशन, एक बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा इमोशन कब एडिक्शन में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। सो
कब ये हमारी धीरे धीरे सीवियर सिम्टम्स आके हमारे लिए सिग्निफिकेंट की बजाय प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। सो लव एडिक्शन क्या होता है ये जानना आज बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरी डेली प्रैक्टिस में 8 to 14 ईयर्स की एज में वो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं विद एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन एंड सुसाइडल आइडिएशंस, बिकॉज आई sent a friend request to someone and she rejected me. He never accepted my friend request. He's talking to so many other girls in the class, but ma'am, he's not talking to me. My friend has so many boyfriends. I have no boyfriend. Nobody likes me. This is the current scenario. और कुछ बच्चे इतने फिर get off हो जाते हैं उस स्केल से, I don't care about anyone. I don't need anyone in my body. Just after 1 or 2 rejections in this tender age. So अगर अभी से आपका internal system इस तरह से wired हो रहा है, इस तरह की आपकी emotions develop हो रही हैं, you can see later future में कितने negative consequences आने वाले हैं. So we are confusing love with obsession. हम लोग boundaries नहीं बना पा रहे हैं very young age से. We are so much open to anyone and everyone on social media very soon. बहुत जल्दी हम ट्रस्ट करने लगे हैं, उतनी ही जल्दी हमें ट्रस्ट इश्यूज आने लगे हैं. And we are too vulnerable too fast. High sensitive, highly impulsive, highly reactive. और फिर एक या दो लोगों की डिसलाइकिंग, नॉन वैलिडेशन, नॉन एक्सेप्टेंस के बाद हमारे अंदर हमेशा के लिए एक फोबिया आ जाता है कि आई विल स्टे अलोन ऑल द टाइम. बहुत ही यंग बच्चे जो एडोलेसेंस में भी नहीं पहुंचे, प्री टीन में हैं, वो आके मुझे कहते हैं मुझे पता है मुझे कभी कोई प्यार नहीं करेगा, आई विल ऑलवेज बी अबंडेंट. और जो पेरेंट्स उन्हें इतना प्यार करते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं, वो उनकी तरफ भी नहीं देखते, सिर्फ उस एक इंसान की वजह से जिसने उनको डिसलाइक किया या बुली किया, ह्यूमिलेट किया या एक्सेप्ट नहीं किया. एंड लॉन्ग लास्टिंग लाइफ के लिए फियर ऑफ इंटीमेसी शुरू हो जाता है और हम एक ऑब्सेस्ड रिलेशनशिप के साथ इतना प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि आगे आने वाले अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे रिलेशंस, अच्छे इमोशनल बॉन्ड हम लोग ले ही नहीं पाते, हम उन पे रिलाई नहीं कर पाते. एंड देन अपने आप ही हमारे अंदर एक खालीपन आने लगता है. हमारी रियल इंटीमेसी के लिए हम एक इमोशनल डिपेंडेंसी बना लेते हैं, कंफ्यूजन वाली. जो इंसान हमारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम उसी के ऊपर इमोशनली इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम उसके ऊपर इतना अटैच्ड हो जाते हैं फॉर दैट अनअवेलेबल, डिस्टेंट एंड अवॉइडेंट पर्सन ऑन सोशल मीडिया और इन द क्लास में भी, और मे बी इन द सोसाइटी. हमें लगता है एक वही जादूगर है जो हमें खुशी दे सकता है, वही जादूगर है कि जब वो आएगा, एक छड़ी घुमाएगा, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हेल्दी, आई विल बी एक्साइटेड, देन आई विल स्टडी, देन आई विल अचीव माई ड्रीम्स. वो मिलेगा तो सब होना चाहिए, अदरवाइज नहीं. एंड देन जब वो नहीं होता, फिर हम ब्रेकअप के बाद ब्रेकअप. आई फील सो शॉक्ड व्हेन आई लिसन टू यंग पीपल एट द एज ऑफ 13 and 14 and 15 when they share their regular breakups. कितने सारे ब्रेकअप्स हो चुके होते हैं उस एज तक. So let's understand this scenario of addiction in the shape of a tree. Okay, we all know, we all understand tree has different portions, roots, trunks and branches and leaves, है ना. और अगर हम इस ट्री को एडिक्शन के ट्री के हिसाब से देखें, एनी एडिक्शन, जितनी भी एडिक्शंस की हमने बात की उसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है. एवरी एडिक्टिव बिहेवियर इट हैज रूट्स. दैट्स व्हाई एट दी माइंड मेंटर्स एंड दीप कम्युनिटी वी नेवर जज एनीबडी, वी नेवर लेबल एनीबडी गुड और बैड, वी नेवर try to preach or teach people on the basis of their addictive behavior. हम उन्हें कभी जज नहीं करते, लेबल नहीं करते. We accept everyone with love, with completely non-judgmental approach. Why? Because they are helpless. किसी ना किसी कारण से ही कुछ ना कुछ behaviors पनपते हैं. Here I would like to address to coaches, parents, teachers, educators and all the adults sitting in the room. Whenever you encounter such cases,
Please handle with care and try to look at the roots. किसी भी बच्चे के साथ at the bottom of addiction tree, it may be the soil and seeds of addiction, which consist of emotional, physical, sexual, spiritual neglect or abuse. These are combined with innate hereditary factors also. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे का वो फैमिली से ही आता है. Unhealthy foundation for life, it creates this tree's roots. Very painful feelings of toxic shame, any bully, any humiliation, which results into fear, anger, grief, loneliness, and rejected self. और फिर ट्रंक जो है इसका एडिक्शन का, it is wounded psyche or wounded self. बिल्कुल shattered self-esteem and our senses of emptiness and isolation जो हम कोशिश करते हैं fulfill करने की through other unhealthy coping mechanism. और branches of tree में हमारे पास रह जाता है addictions, an attempt to escape our painful feeling of shame, fear, anger, depression, sadness, bully, humiliation, lackness. Spiritually, maybe we are trying to become whole again, attempting to mend our broken pieces. So, हमारी mind, body and soul actually इस तरह से trap में आती है. Whenever we are not feeling good inside, हमें लोगों की addiction होने लगती है to fulfill that void. हमें feelings बुरी आने लगती हैं. हम लोग फिर उन feelings और people addiction को overcome करने के लिए substance addiction में जा सकते हैं, thought addiction में जा सकते हैं, and they lead to our activity addictions. So this is completely a grown trap. Or as parents, as society, as teachers, so many times, or even हम लोग youngsters को भी देखते हैं, we try to cut the branches, remove the leaves, and shake the trunk. No, it's not going to fulfill the purpose. क्योंकि यहाँ गड़बड़ क्या होती है? अगर हम सिर्फ behaviors को देख रहे हैं, behaviors को modify करने की कोशिश कर रहे हैं, behaviors के ऊपर ही सारा काम कर रहे हैं, what we are missing in this exercise? Yes, please. Roots. Very good, Megha. Yes, because nobody is looking at the roots. Nobody is trying to work on the causes of that. कि roots कहाँ से हैं? And we as psychologists, we as mental health practitioners, we as counselors, we always try to talk to that person. We try to find out the basic roots and those reasons behind that addictive behavior. So whenever we look at the tree of addictions, we need to check the soil, we need to check the roots. If we work on them, if we take care of them, if we improve them, if we repair them, definitely branches will grow again. New leaves will crop up again. So definitely cutting the branches and trees does not solve any problem. Working on the roots is very important, where I always try to encourage and empower teachers, coaches, parents, parenting coaches to be the part of this community, ताकि हम लोग उन पे roots के ऊपर काम करना सीख सकें. That's how we train for CBT techniques to even a very, very simple person in the society, ताकि वो खुद समझ सकें कि उनके cognitive behavioral patterns कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं, कहाँ उनकी जो choices खराब हो रही हैं, कहाँ से ये behavior आ रहा है. So everybody should learn about cognitive behavior therapies and techniques, ताकि आप अपनी thinking, अपनी feeling और अपने behavior को monitor कर सकें कि ये behavior कौन सी feeling से आए और वो feeling मेरी किस सोच ने दी, वो सोच मुझे कहाँ से मिली. This is very important. And as we all understand, कि choices leads to consequences. तो अब हम addictions के quickly consequences या फिर जो उनके complications हैं उनको भी जरूर देखेंगे, क्योंकि वो बदल देती हैं हमारा सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका और बिहेव करने का तरीका. हम जो पर्सनालिटी थे या होना चाहते थे, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए एम किया, जो हमने खुद के लिए एम किया था,
वो कहीं रास्ते में ही बिखर गया और हम कुछ अलग पर्सनैलिटी होके रह गए ड्यू टू दोज एडिक्शंस, बैड ट्रैप, जितना भी हमारा एक डिस्ट्रैक्शंस वाला बिहेवियर है। हम सबको पता है अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हम कभी भी अपने साथ रोड एक्सीडेंट होने नहीं देना चाहते। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हों। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारा लीवर डैमेज हो जाए। हम कभी नहीं चाहते कि हम लॉजिकल रैशनल डिसीजन लेने की बजाय इंपल्सिव डिसीजन लें, लेकिन हम लेने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम ऐसे हो गए इफ वी आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। मे बी यंगस्टर्स, मे बी एडल्ट्स, मे बी एनीबडी। एंड अल्कोहल का सिर्फ फिजिकल बॉडी पे ही इम्पैक्ट नहीं होता, मेंटल बॉडी पे, मेंटल हेल्थ पे भी बुरी तरह ये अटैक करता है। You talk about depression, you talk about frustration, you talk about anxiety, you talk about social withdrawal, isolation, self-harm tendencies, non-suicidal ideations. It is everything part of alcohol consumption. And यही mental conditions किसी भी तरह के और ड्रग अब्यूज के साथ आती हैं। वो निकोटीन, स्मोकिंग, आप कुछ भी कहें, उसके जितने फिजिकल सिम्टम्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसके साथ साथ सेम मेंटल सिम्टम्स जो हम अल्कोहल से परसीव करते हैं या गेन करते हैं, वो सारे हमें निकोटीन से भी मिलते हैं। सो हु वुड लाइक टू हैव दिस काइंड ऑफ लाइफ? कोई चाहेगा ऐसी लाइफ, इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस? जिस तरह के हमें फ्रूट्स चाहिए, उस तरह के ही ट्री को हम नर्चर करेंगे, उस तरह से ही हम अपनी रूट्स पे काम करेंगे। क्या हमें ऐसे फ्रूट्स चाहिए, फिर हम अपनी ब्रांचेस पे, लीव्स पे ये चीजें ग्रो करने के लिए अपनी रूट्स पे काम करें। एंड ड्रग एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ ड्रग, जितनी भी हमारी अनइंटेंशनल और इंटेंशनल रॉन्ग चॉइसेस होती हैं, दे लीड टू डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। टीनेज ब्रेन को पूरी तरह से तहस नहस करके रख देती हैं ड्रग्स। ड्रग एक ऐसा स्लो पॉइजन है जिसका इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट, लॉस हमें दिखता नहीं है। दैट्स व्हाई, दैट्स हाउ teenagers, adolescents, they are not convinced about the damage related to smoking, drugs or porn, because it is a slow poison. ये अभी तो बड़ा मजा दे रहा है, लेकिन इसकी सजा जो आने वाली है लॉन्ग टर्म में, that is very very bad, और वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। किस तरह से हमारी इंटेलिजेंस डैमेज होती है, किस तरह से हमारी हेल्थ डैमेज हो जाती है, किस तरह से हमारा जो इमोशनल ब्रेन है वो हैम्पर होता है। And our teens are completely at risk because at the early age, at this young age, उनका टॉलरेंस, उनका जो स्टेमिना, वो इन चीजों को झेलने का नहीं होता। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जो ये लॉजिक देते हैं, पापा भी ड्रिंक करते हैं, मेरे पापा भी ड्रग्स जैसी कोई चीज लेते हैं, ठीक है, मेरे एक चाचू हैं, मेरे एक और अंकल हैं, इवन मेरी दीदी की फ्रेंड है, शी स्मोक्स। They have their own choices. अगर हम किसी के वेल विशर हैं, तो बच्चे भी कभी नहीं चाहेंगे कि पापा का लीवर डैमेज हो। बच्चे नहीं चाहेंगे कि सिस्टर जो है वो स्मोक करके इस सिचुएशन में पहुंचे। So we are not going to follow them. We are going to take care of them. Even we are going to tell them they are opting wrong choices, even if they are adults. Because these choices leads to consequences. हम लोग पूरी तरह से एक शैटर्ड पर्सनैलिटी हो जाते हैं, एक बहुत ही सोशली अनएक्सेप्टेड बिहेवियर करके सोशली अनएक्सपेक्टेड पर्सनैलिटी बन जाते हैं। हम मनी लूज करते हैं, हम पेरेंट्स की मनी भी वेस्ट करते हैं, हम लोग अपने रिसोर्सेज का मिस यूज करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हमारा फिजिकल सिस्टम डैमेज हो रहा है, हम अकेले रह जाते हैं, हमारे साथ एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप, एक अच्छा पीयर ग्रुप, एक हेल्दी हैप्पी सोशल स्टेटस नहीं रहता हमारा। और बहुत सारे बच्चे गलत ट्रैप में आके, क्योंकि पीयर ग्रुप ही चेंज हो जाता है, तो क्रिमिनल टेंडेंसीज भी डेवलप होने लग जाती हैं। सो मेनी टाइम्स दे जंप इनटू रिस्की बिहेवियर्स, वायलेंस, अब्यूज, ईव टीजिंग, रेप्स एंड एसिड थ्रो, और जिसकी वजह से दे कैन लैंड इनटू जेल। तो बहुत सारी चॉइसेस, और हमें ये नहीं लगता कि ये तो उसके साथ हुआ, ये तो उसके साथ होता है, हमारे साथ नहीं कभी हो सकता, आई एम सेफ। नो, when we are on the wrong track, we are never safe. Wrong consequences
और ऑलवेज वेटिंग एट द डिस्टेंस। वे हमेशा हमारी वेट कर रही होती हैं जब हम उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। सेम इज विद डिजिटल एडिक्शन। फोन को यूज करना, गेम्स खेलना, सोशल मीडिया यूज करना बहुत नॉर्मल है। ये एडिक्शन कैसे हो सकता है? ये हो जाता है अननोइंगली, अनइंटेंशनली, स्लोली, जब हम धीरे धीरे उस स्क्रीन के पीछे कैद हो जाते हैं और बाकी सब लोग हमसे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, या हम उनसे विड्रॉ कर लेते हैं, हम उनसे आइसोलेट कर लेते हैं। एग्री? एनीबडी जिसको लगता है कि अब तक जो बात हुई वहां कोई ऑब्जेक्शन है या कोई क्वेश्चन है आपका? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। यान इज थिंकिंग, यस। कोई क्वेश्चन आया यान? योर टीप इज वेरी क्यूट। Great. So I'm so glad you all are here. So many has left, no worries. हम क्विकली इसे वाइंड अप करेंगे ताकि मैं बाकी सब लोगों को भागने का मौका नहीं दूं। बट मैं बोर तो नहीं कर रही हूँ। ओके, टेक्नोलॉजी एडिक्शन की जब हम बात करते हैं, ये एडिक्शन क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे ये कंपल्सिव बिहेवियर बनता जा रहा है, जिसे छोड़ना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, और हम पे इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, रेगुलर माइग्रेन्स, रेगुलर हेडेक, नेक पेन बच्चों में दिख रहा है, बड़ों में दिख रहा है। पुअर हाइजीन होता जा रहा है, क्योंकि नहाने को ही मन नहीं करता, छुट्टी है तो बड़े हैं काउच पे, बिस्तर पे और फोन में लगे हैं। आधी आधी रात तक हम लोग फोन चला रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, अगले दिन हम अच्छे से उठ नहीं पाते, बहुत ही वियर्ड स्टेट ऑफ माइंड में, वियर्ड स्टेट ऑफ बॉडी में हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या काम पे जाते हैं, वहां फिर हम अपना 100% दे नहीं पाते। इट लीड्स टू आवर पुअर परफॉर्मेंस एट एवरी फ्रंट। और क्योंकि हमने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, प्रॉपर अपना हाइजीन का ध्यान रखना छोड़ दिया, जस्ट लालच में कि उतना टाइम हम स्क्रीन पर रह सकें, ज्यादा से ज्यादा गेम खेलें, ज्यादा से ज्यादा स्नैपचैट यूज करें, ज्यादा से ज्यादा हम एक स्क्रीन वर्ल्ड में रहें, तो उसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है, अनहेल्दी प्रेपोजिशन हमारी लाइफ में दिखने लग जाती हैं, और आईज से रिलेटेड इंफेक्शंस, डैमेजेस, कॉर्नियल डैमेजेस छोटे छोटे बच्चों में बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव आईज के ऊपर ब्लू स्क्रीन का प्रेशर बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। और इंटरनेट एडिक्शन के बहुत सारे और ऐसे जो रिस्की और हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बच्चे बहुत ज्यादा वायलेंट, क्रिमिनल, बुलिंग, साइबर बुलिंग जिसको हम बोलते हैं, साइबर बिहेवियर्स, जो भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, उनका भी शिकार होते जाते हैं, और कई बच्चे उनका ट्रैप बन जाते हैं, कई उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड इससे शुरू होती है हमारी बिहेवियर एडिक्शन। एक छोटी सी आदत धीरे धीरे हमारा करेक्टर बन जाती है, हमारा पर्सनैलिटी बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है, हमारा बिहेवियर बन जाता है, और हम इतने इंटेलिजेंट हों, हम इतने स्मार्ट हों, हम कितने मर्जी थॉटफुल हों, लविंग हों, हमारी पूरी एक पहचान, एक ठप्पा लग जाता है, एक लेबल लग जाता है उस एडिक्शन की वजह से। एंड वन एडिक्शन फ्रॉम दैट डिजिटल स्क्रीन इज कमिंग इज पॉर्न। बहुत छोटी एज में बच्चे पॉर्न एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। आई कंप्लीटली एग्री। आप इसे खुद नहीं चुनते, बहुत बार आपको किसी ने लिंक भेजा, आपकी होमवर्क की साइट पे लिंक आ गया, आप तो कुछ और देख रहे थे, आप तो कोई गेम खेल रहे थे, उसमें ये लिंक आ गया। आपको सिर्फ एक साइकिल ब्रेक करना है, आपको वो लिंक ओपन नहीं करना है, आपको वो कंटेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है। ओपन कर भी लिया, आपको अपने किसी नियर बाय एडल्ट को इन्फॉर्म करना है। इफ यू हैव एक्सीडेंटली ओपन एनी साइट, आपको प्लीज अपने पेरेंट, टीचर और एल्डर सिबलिंग को बताना है व्हाट हैपेंड एक्सीडेंटली, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी इन योर पॉकेट। ये आपका ब्लेम बनने वाला है, ये आपका क्राइम बनने वाला है। और धीरे धीरे जो बच्चे रेगुलर पॉर्न से प्लेजर लेने की कोशिश कर रहे हैं, अननेचुरल तरीके से, अनयूजुअल तरीके से, बहुत ही टेंडर और यंग एज में, लेट मी टेल यू, मेरे पास डेली बेसिस पे 4 to 5 केसेस आ रहे हैं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 to 22,
जिन बच्चों को हाई रिस्क मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो गए, डिस्टॉर्टेड रियलिटी हो गई, स्किज़ोफ्रेनिक हो रहे हैं बच्चे, रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हैं, दे आर ऑलवेज रोमिंग अराउंड दैट डिजिटल वर्ल्ड, वो वर्चुअल वर्ल्ड की चीजों को ही रियल मानने लगे हैं, उनके लिए रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, चाहे वो डिजिटल गेम्स हैं चाहे पॉर्न है। और धीरे धीरे इससे शुरू होता है आपका अनयूजुअल फिजिकल एक्ट, जिसको मैस्टुरेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इनर कैपेसिटीज हैं, हार्मोनल बैलेंसेस हैं, वो सब डिसरप्ट होते हैं। लेटर फ्यूचर में जाके आप इनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बियर करते हो। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया यूथ के लिए बहुत जरूरी है। आई कंप्लीटली एग्री, हम उससे आपको दूर नहीं रख सकते, ना हम रह सकते हैं, हम खुद भी, लेकिन उसका आपकी लाइफ पे कितना कंट्रोल, कितना इंटरफेरेंस, कितना आपको उसमें घुसना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बिकॉज स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, चाहे वो स्लीप से रिलेटेड हैं, आपके ग्रेड से रिलेटेड हैं, आपके वर्क से रिलेटेड हैं, आपके सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ से रिलेटेड हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ हैम्पर होती है, और ये सब की वजह से जो आप हैं, यू लीड टू रिलैक्स, लेस टाइम इन्वेस्टिंग इन लर्निंग एंड रिलैक्स, तो वो आपका एक और नुकसान होता है। आप वेट गेन कर रहे हो तो आपकी बॉडी शेप खराब हो रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ स्टीम के प्रॉब्लम आएंगे, आपके मूड स्विंग्स होंगे, बिहेवियर प्रॉब्लम होंगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप शाउट करोगे, आप एंगर एग्रेशन दिखाओगे, आप फाइट्स में जल्दी इन्वॉल्व होगे। इससे आपकी पुअर सेल्फ इमेज बनेगी और धीरे धीरे लोग आपको रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे, डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देंगे कि आप तो पता नहीं कहाँ रहते हो, आप तो पता नहीं किस दुनिया में खोए हो, आप तो पता नहीं कैसे हो गए हो। एंड देन यू विल फील FOMO, fear of missing out. Then you are not part of even that virtual world and you are not part of real world. आप कहीं खो जाते हो, और ऐसे केसेस डेली बेसिस पे मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, जिसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर समझते हैं, कि क्योंकि सभी तो कर रहे हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम व्हाट इज द रॉन्ग इन दैट, सभी तो ऐसा कर रहे हैं, सबके पास फोन है, सब यूट्यूब देख रहे हैं, सब गेम्स खेल रहे हैं, सब स्नैपचैट यूज कर रहे हैं। इट्स ओके until and unless ये आपका डिसऑर्डर न बन जाए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये आपकी मजबूरी, ये आपकी इनर चाहत ही ना बन जाए कि इसके बिना आप रह ही नहीं सकते। आप हर वक्त डिस्ट्रेस में रहते हो अगर आपको फोन नहीं मिला, आप हर वक्त डिस्ट्रेस में रहते हो अगर आपकी उससे बात नहीं हुई, आप हर वक्त डिस्ट्रेस में रहते हो अगर आपको किसी चीज के लिए मना कर दिया गया, आप हर वक्त डिस्ट्रेस में रहते हो क्योंकि आपने गेम का वो लेवल अचीव नहीं किया, देन खतरे का साइन है। और इसकी वजह से आपकी पढ़ाई, काम, रिलेशनशिप, हेल्थ, रूटीन, हैबिट्स, एक्टिविटीज डिसफंक्शनल हो रही हैं, तो ये और भी बड़े खतरे की घंटी है। ओके, और यहाँ आपको चेक करना जरूरी है कि ये जो फेक डोपामिन आप रिसीव कर रहे हो इन एक्टिविटीज से, इन इन्वॉल्वमेंट से, यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द रियल लाइफ चैलेंजेस, आप छुप रहे हो इसके पीछे, स्क्रीन के पीछे। लेट मी टेल यू, ये धीरे धीरे डोपामिन आपको इस तरह से लगेगा कि क्योंकि हम यही चाहते हैं और हमें कुछ, यहाँ आते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ अलर्ट नहीं हुए देन अनदर मॉन्स्टर इज कमिंग विच इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तब आपके कंट्रोल में ही नहीं रहेंगी आपकी इंपल्सिस, आपका ब्रेन, आपका माइंड आपका साथ छोड़ देता है, आपको मेडिकेशन लेना पड़ता है, आपको थेरेपीज लेनी पड़ती हैं, काउंसलिंग लेनी पड़ती हैं, या फिर आप धीरे धीरे डिल्यूजनल, हेल्यूसिनेशंस और न जाने कौन से वाले डिसऑर्डर्स में चले जाते हो, क्योंकि इतनी एंजाइटी होती है। और तब आप बोलते हो प्लीज हमें निकालो, हमें इसमें से निकालो, मुझे ऐसा नहीं बनना, मेरा तो गोल ही खत्म हो गया, मेरी तो हैप्पीनेस ही खत्म हो गई, मेरा तो सुकून ही खत्म हो गया। डेली बेसिस पे आई ऑब्जर्व दीज सिनेरियोज व्हेन पीपल प्लीड, मैम प्लीज हेल्प मी, नाउ आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, पर मेरे से रह नहीं हो रहा, मैं निकलना चाहता हूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं करना चाहती पर मेरे से हो नहीं रहा। Let me tell you, everybody sitting here, we are not against digital world, we are not against digital progress, we are more concerned about digital well-being. हम लोग आपको उससे जो है वो ग्रिप से छुड़ाना नहीं चाहते, हम उससे तोड़ना नहीं चाहते। पेरेंट्स बच्चों को फोन देते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन सिर्फ कंसर्न ये रहता है कि आपको डिजिटल वेलबींग कैसे मेंटेन करनी है, एक बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, ताकि आप
उनका जब भी गैजेट और टेक्नोलॉजी से दूर रहो, तब भी आप नॉर्मल रह सको, तब भी आप मुस्कुराओ, तब भी आप हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, आप सबके साथ अच्छी बातचीत करो। अदरवाइज आप में से बैठा हुआ कोई भी बच्चा या बड़ा ऐसा नहीं फील करता है, तो यू आर लीडिंग टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जैसा मैंने पहले बताया, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन, बाइपोलर, इवन स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी, पैरानॉइड पर्सनैलिटी, बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं, डिल्यूजनल थिंकिंग, डिस्ट्रस्ट होना, हर वक्त किसी ना किसी डाउट में रहना। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को मिलते हैं, दोज आर इमोशनली नम, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, ना हंसने का, ना रोने का, ना स्माइल करने का, ना गुस्से का। Okay, so they have lost their interest in relationship or families and social life. और even वो सारा frustration social media पे निकालते हैं, when they bully online, when they tease anybody online, when they sneak into others' life online, when they send random requests to people online, और फिर उनको मजबूर करते हैं कि वो उनके साथ दोस्ती बनाए। तो ये कहीं ना कहीं वायलेंट और क्रिमिनल बिहेवियर माना जाता है। और ये जो एक टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं हमारी जनरेशन्स में, वो आगे लीड कर रही हैं रिलेशनशिप और इमोशनल डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स को। आप सब जानते हैं, आज ये सिनेरियोज आप सब देख रहे हो, वेरी कॉमन। जहां भी बच्चे हैं उनके हाथ में फोन है, जहां भी बच्चे हैं उनके साथ फ्रेंड्स हैं, एवरीबॉडी स्नैपचैट पे या सोशल मीडिया पे एक डिस्टेंट फ्रेंड के साथ, जिसकी उसको आइडेंटिटी भी नहीं पता, उसके साथ एंगेज्ड है। लेकिन अभी आपकी यंग एज में आपकी इंटेलिजेंस इतनी ग्रो नहीं हुई कि आप कन्फ्लिक्ट को नेविगेट कर सको, रिजेक्शन को हैंडल कर सको। आप जितने भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इन चीजों से आने वाले हैं, चाहे वो पॉर्न से रिलेटेड चीजें हैं, ऑनलाइन सेक्स है, इससे आप कल को हैंडल नहीं कर पाओगे, और फिर आप खुद के बारे में भी जजमेंटल होगे, दूसरों के बारे में भी शेम, गिल्ट, रिग्रेट, बहुत सारी चीजों पे आपको जो है वो खतरे नजर आएंगे, जिनसे आप भागने की कोशिश करोगे, नहीं भाग पाओगे, फेस नहीं कर पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे, पेरेंट्स को नहीं बता पाते, देन यू लीड टू सुसाइडल आइडिएशन। एंड ये जो यंग एज के, टेंडर एज के लव अट्रैक्शंस हैं, लव एडिक्शंस हैं, ये आपको और भी ज्यादा को डिपेंडेंसी में डाल रहे हैं कि आप एक रियल, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, सॉलिड प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के एक फेक, वर्चुअल, अनरिलायबल, अनरिकग्नाइजेबल, जिनका पता ही नहीं है, अनसर्टेनिटी कितनी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी है, उनके ऊपर आप अपनी एनर्जी, फोकस, अटेंशन और सारी इमोशंस लगा रहे हो। Let me warn you again, you need to come out of this, but it is totally your choice. As I told you earlier, आपको यहाँ से डोपामिन टेम्परेरी लेना है और अपनी ब्रेन की डोपामिन डेवलपमेंट, पॉजिटिव हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स को हमेशा के लिए शट ऑफ कर देना है कि जब जब ये चीजें मिलेंगी तब तब खुश रहोगे, जब ये नहीं मिलेंगी यू आर ए डैमेज्ड पीस, देन तो गो अहेड, ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमें इसे अभी खत्म करना है, क्योंकि ये शुरू कैसे होता है, एक बार फर्स्ट यूज, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, 1 पाउंड देखा, किसी ने बोला एक तो पफ लगा के देख, 1 पैग लेके तो देख, फिर थोड़ा थोड़ा आप रेगुलर यूज करते हो। कोई पूछता है तूने ज्यादा शुरू कर दी, क्या तू हर रोज पाउंड देखता है? नो नो, मैं तो नहीं देखता, मैं तो पढ़ रहा हूँ। क्या तुम गेम खेल रहे थे? नहीं मम्मा, मैं तो अपना सिलेबस कर रहा था। इस तरह के रीजन शुरू होते हैं और फिर आपका बिहेवियर चेंज सबको दिखने लगता है, क्योंकि आप उस ट्रैप में एंगेज होते चले जाते हो। दैट इज द थर्ड स्टेज, जब पेरेंट्स, टीचर्स और आपके फ्रेंड्स अलर्ट होने लगते हैं कि आप में कुछ बदलाव आ रहा है। और धीरे धीरे आप अगर उसे डिनाई करते जाओगे, आप उससे निकलने की कोशिश नहीं करोगे, तो जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया है, आपकी टॉलरेंस और डिपेंडेंस, टॉलरेंस कम होती जाएगी, डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। और यहाँ 5th स्टेज आती है कि अगर आप हेल्प नहीं लेते हो, देन आपकी लाइफ में, लाइफ की बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप नेगेटिव चॉइसेस की तरफ भी जा सकते हो जो कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप पॉजिटिव चॉइसेस की तरफ भी जा सकते हो जो कि ट्रैक्शंस हैं, विच विल लीड टू योर हेल्दी, हैप्पी नेम, फेम, मनी। और तब वो पाके आप वो सब कुछ पा जाओगे जो अब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ट्रस्ट मी। तो आपको ट्रैश वाली फीलिंग लेनी है, या आपको 5th स्टेज पे आने से पहले ही 4th, 3rd, 2nd स्टेज से ही
काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, डिटॉक्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपको रिकवरी ट्री पे आना ही पड़ेगा। रिकवरी ट्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, जैसे हमने एडिक्शन ट्री के बारे में बात की, तो उसकी सॉइल और उसकी रूट्स में जो हैं वो लविंग, नर्चरिंग एनवायरनमेंट्स, रिलेशनशिप्स, कम्युनिटीज होती हैं। हम तैयार हैं, हम एज ए फैमिली, एज ए कम्युनिटी तैयार हैं आपको वो सपोर्ट देने के लिए, आपकी लोनलीनेस, आइसोलेशन, जितना भी डैमेज है उसको ओवरकम करने के लिए। इसीलिए आज दीप कम्युनिटी ने कार्निवल ऑफ होप के थ्रू आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया है, बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी फायदे के। सो हेल्दी फाउंडेशन जो है ये आपके सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को, ग्रेटिट्यूड को, एम्पैथी को, अनसेल्फिशनेस को, सेल्फ एक्सेप्टेंस को, कंपैशन को बढ़ाएगी और आप अपने आप से और दूसरों से प्यार करना शुरू करते हो। जो ट्रंक है इसमें आपकी रिकवरी की कमिटमेंट होनी चाहिए, आपका सेंस ऑफ सेल्फ जागना चाहिए, आप में एक सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, आपको सोबर होने का एक कमिटमेंट करना चाहिए। अगर आप ये कर पाते हो देन आपकी ब्रांचेस और फ्रूट्स जो हैं वो हेल्दी होंगी, मीनिंगफुल होंगी और आप एक बहुत ही रिफाइंड पर्सनैलिटी बनेंगे जो सबको प्यारी लगेगी, जिससे आप खुद भी प्यार करोगे। प्लीज डोंट लेट योर माइंड रिमेन शेकल्ड विद दिस ट्रैप्स। अभी से जागो, अभी से इस चीज का ध्यान रखो और अपनी लाइफ की चॉइसेस को चेंज। आप अपनी लाइफ को ट्रैश बनाना चाहते हो या सेलिब्रेशन बनाना चाहते हो? आप एक अनवर्दी, हेल्पलेस, शैटर्ड पर्सन बनना चाहते हो या आप एक बहुत ही काम, लविंग, केयरिंग एंड एनलाइटेंड पर्सन बनना चाहते हो? दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस बिकॉज दिस इज योर लाइफ। We have give you all the results and consequences कि आपके प्लेटर पे कौन सी चीज क्या सर्व कर सकती है। हम कभी नहीं कहेंगे ये करें या ना करें, हम हमेशा कहेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि आपको मंकी माइंड का ट्रैप में जाना है या आपको अपने अंदर के मंक माइंड का हमेशा उंगली पकड़कर चलना है, बिकॉज दे बोथ आर इनसाइड अस। कोई भी चीज बाहर से आपको हार्म, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, प्रेशर नहीं कर सकती अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो। अगर आप अपने मंकी माइंड को हमेशा शटअप कह के रखोगे कि मुझे पता है तू उस ट्रैप पे जा रहा है, मुझे पता है तू बुलशिट कर रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, देन यू आर यूजिंग योर मंक माइंड, वाइज माइंड, इंटेलिजेंट माइंड, एंड यू आर ट्राइंग टू मेंटेन सेल्फ कंट्रोल एंड यू आर ट्राइंग टू डिटैच फ्रॉम ऑल दोज डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रक्टिव पीपल और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स। क्योंकि अब हमें हर सिचुएशन का इम्पैक्ट नजर आ गया है, समझ आ गया है। आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू एवरीवन कि आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। सो बिफोर वी क्लोज आई वुड लाइक टू शेयर ए वंडरफुल वीडियो विद यू। बहुत ध्यान से सुनिएगा। When I'm feeling low, I don't know where to go. I don't know who to turn to in the night. When I close my eyes and there to my surprise, I see a new beginning in my sight. I see the light. I see the light. I see my dreams just coming closer as I regain my composure. As my mind just opens up, I see the light. I see the light. I see the vision of my future as I waken from my stupor. Shining brightly right before me is the light. I see the light. It's a brand new day. I see a whole new way. New possibilities are in my mind. Something's gotta change when I just rearrange priorities and choices in my life. I can see
clearly. The night has gone. I feel rejuvenated and reborn. It seems impossible until it's done. Let's not stop now, for we have just begun. I see the light. I see my purpose right before me. You're in calling now.